Hello students, myself Dr. Preeti Sharma. Students, today we are going to start the chapter 3 of your book Snapshot. The name of the chapter is Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. Let's read about the lesson. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been in the city to pursue his studies. When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mile around his house to see whether he has changed or not. His ideas about marriage are now quite different, or are they? Student, this chapter Ranga's marriage is about a simple ordinary man whose name is Ranga. In this chapter, we will read how this man acquires some changes or not acquire some changes after spending 6 months in the city Bangalore. The author is informing us that Ranga's is accountant's son. His father was an accountant by profession. Rare breed among the village folk, and Ranga was a rare breed. Rare breed means he is one of the rare person. He is unique person of his village, and he went who pursue his education. He is one of those people who went outside of their village just to pursue, just to start, or just to continue their education. When he returns to his village from the city Bangalore, and when he returns back from the Bangalore to his city, the crowd mile round, जो crowd थी वो mile round का मतलब वो बहुत एक एक मील दो दो मील लंबी जो लाइन थी वो उसके घर के बाहर लग गई है ना, mile round his house to see whether he has changed or not. The purpose of the crowd was not to see Ranga, rather they were interested to notice whether after spending 6 months in the city Bangalore he has changed or not, or what are his ideas about marriage. So all the people were curious about this thing. They wanted to know how Ranga has changed or not after spending time in Bangalore, and what are his views about marriage. So they gathered around his house when he returns from Bangalore. ठीक है, ये स्टोरी आज हम इसमें पढ़ेंगे रंगा के बारे में. रंगा जो था एक सिंपल अकाउंटेंट का बेटा है, अकाउंटेंट सन है, और वो अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए बेंगलोर जाता है. जब वो वहाँ से लौट कर आता है तो उसके घर के बाहर बहुत लंबी लाइन लग जाती है. लोग ये देखना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या रंगा सिटी में अपना टाइम निकालने के बाद चेंज हुआ है या नहीं हुआ है. Let's begin the lesson. When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage, why not Ranganath Vivah or Ranganath Vijaya? Well, yes, I know. I could have used some mouth-filling one like Jagannath Vijaya or Girja Kalyana. Now, author is starting the chapter by saying, he is saying when you see this title, he is addressing his reader. जो ऑथर हैं मस्ती वेंकटेश आयंगर, वो अपने रीडर्स को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, व्हेन यू नोटिस द टाइटल ऑफ द चैप्टर इट इज़ वेरी सिंपल, रंगाज मैरिज. इस चैप्टर का टाइटल बहुत सिंपल है, टाइटल है रंगाज मैरिज. व्हाई नॉट रंगनाथन विजया और रंगनाथ विवाह.
वो कह रहे हैं इसका कोई, मैंने बड़ा ही टिपिकल टाइटल क्यों नहीं रखा इस चैप्टर का, मीन्स जो सुनने में थोड़ा सा टिपिकल लगे, क्रिटिकल लगे, जिसको पढ़ने से ऐसा लगे यस द राइटर हैज़ रिटन समथिंग वेरी स्पेशल इन दिस चैप्टर। मैं इसको रंगाज मैरिज की जगह रंगनाथन विजया या रंगनाथन विवाह ऐसा टाइटल मैंने इस चैप्टर का क्यों नहीं रखा। हो सकता है बहुत से मेरे रीडर्स ऐसा सोच रहे हो, ऑथर बोल रहा है। वेल yes, I know I could have used some mouth filling one. Now mouth filling means a very difficult or we can say artificial title. वो कह रहा है कि मैं इसके लिए कुछ बड़ा ही अट्रैक्टिव, आर्टिफिशियल या बड़ा ही फैसिनेटेड टाइटल भी सजेस्ट कर सकता था इस चैप्टर के लिए, जैसे कि जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याणा। इस तरह के जो शब्द हैं बड़े डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल होते हैं, सुनने में लगते हैं कि कुछ अलग सा है, कुछ स्टेटस हाई करते हैं। वो कह रहा है ऑथर कि मैं ऐसा भी कोई टाइटल यूज़ कर सकता था, लेकिन बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग। लेकिन वो कह रहा है हमें ये याद रखना चाहिए, ये जो चैप्टर है ये जगन्नाथ विक्ट्री यानी भगवान जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में नहीं है, ना ही गिरजा वेडिंग, ना ही किसी भगवान गिरजा मीन्स गॉड हैं उनकी वेडिंग के बारे में है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। ऑथर इज सेइंग द चैप्टर इज अबाउट आवर ओन रंगा, हमारे ही रंगा के बारे में है, हु इज़ एन ऑर्डनरी मैन। तो इसी वजह से मैंने इस चैप्टर का कोई भी फैंसी टाइटल नहीं रखा है। होसाहल्ली इज़ आवर विलेज, और ये जो चैप्टर है रंगा की शादी के बारे में है, और इस चैप्टर में जिस विलेज का डिस्क्रिप्शन किया गया है वो विलेज है होसाहल्ली। होसाहल्ली चैप्टर की विलेज की ये स्टोरी है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो, ऑथर कह रहा है आपने इस विलेज का नाम ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना क्या? वॉट अ पिटी। उसने कहा ये तो बहुत दुख की बात है कि आपने इस चैप्टर का नाम, इस विलेज का नाम, होसाहल्ली विलेज का नाम आज तक नहीं सुना। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। बट ऑथर ये भी कह रहा है दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट एट ऑल। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। Actually, you have not heard about this chapter anywhere because this village, not chapter, sorry, this village has not been mentioned in anywhere in the books of geography. Geography की बुक्स में ये कहीं भी मेंशन ही नहीं है, इसीलिए आपने आज तक इस विलेज के बारे में नहीं सुना है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड writing in English probably do not know that such a place exists। क्योंकि ये स्टोरी जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस, इट इज़ ऑफ द टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता या जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस से पहले की, जब हमारे कंट्री पे ब्रिटिशर्स का रीजन हुआ करता था, उनका रूल हुआ करता था। तो ऑथर कह रहा है कि उस समय जो साहिब्स ऑफ इंग्लैंड थे, जो इंग्लैंड के बड़े बड़े साहिब होते थे जो यहाँ पर रूल करते थे, वो क्या कर राइटिंग इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में लिखते थे, वो भी हो सकता है डू नॉट नो सच अ प्लेस एग्जिस्ट, उनको भी हो सकता है पता ही नहीं था कि ऐसी एक जगह मौजूद है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसी वजह से उन बड़े बड़े साहिबों ने इस जगह का कोई मेंशन नहीं करा है बुक्स ऑफ ज्योग्राफी में। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, and author is saying it is not the fault of only the great sahibs of England, but our own people, our own countrymen, our own book writers, our own geographers, they also forgot to mention this village in the maps of geography। वो भी ज्योग्राफी की बुक्स में इस विलेज को मेंशन करना भूल गए हैं। probably do not about it, you know how it is, आपको पता है ये कैसा है। they are like a flock of sheep। now author is comparing all these people to the flock of sheep। flock of sheep जो है वो एक प्रोवर्ब होती है जिसका मतलब होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मीन्स जो अगर एक व्यक्ति ने एक काम करा तो सब उसको फॉलो करके वही काम करेंगे। मीन्स यहाँ पे शीप्स का एग्जाम्पल दिया जाता है
फ्लॉक ऑफ शीप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि शीप्स की एक टेंडेंसी होती है कि अगर एक शीप किसी डायरेक्शन में जाती है तो बाकी शीप जो है वो उसी को फॉलो करती हैं विदाउट थिंकिंग वेदर दे आर गोइंग इन अ पिट और नॉट। वो चाहे गड्ढे में ही जा रही हो एक शीप तो बाकी सारी उसके पीछे पीछे गड्ढे में कूद जाती हैं। तो ऑथर कह रहा है मस्ती वेंकटेश अयंगर कि वो सारे जो थे ना वो सब फ्लॉक ऑफ शीप थे। वो एक तरह से वो भेड़ों की तरह थे कि अगर मान लीजिए इंग्लैंड के साहिब ने नहीं मेंशन किया तो हमारे अपने जोग्राफर्स ने भी इसको कहीं मेंशन नहीं किया। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। अगर एक शीप जो है वो पिट में जाती है तो बाकी सारी शीप भी ब्लाइंडली उसको फॉलो करती हैं और उस पिट में कूद जाती हैं। When both the Sahibs of England and our own geographer have not referred to it, ऑथर कह रहे हैं कि जब ना तो हमारे अपने जोग्राफर्स ने और साहिब्स ऑफ इंग्लैंड ने इसको रेफ़र नहीं करा कहीं भी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट इन ऑन द मैप। कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स द ड्राइंग ऑफ मैप्स ऑन द पेपर। मीन्स जो मैप की ड्राइंग बनाता है उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, तो जो मैप बनाता है। तो ऑथर कह रहे हैं देन इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ कार्टोग्राफर। अगर साहिब्स ऑफ इंग्लैंड ने मेंशन नहीं करा, हमारे अपने जोग्राफर्स ने मेंशन नहीं करा, देन डेफिनेटली यू कैन नॉट पुट द ब्लेम अपॉन द कार्टोग्राफर हु हैज़ नॉट मेंशन दिस इन द मैप एनीवेयर। कैन यू, ऑथर कह रहे हैं कैन यू पुट द ब्लेम ऑन हिम? डेफिनेटली नॉट। And so there is not even the shadow of our village on any map। और इसी वजह से हमारे विलेज की मीन्स ऑथर का जो विलेज है होसाहल्ली, उसकी कहीं एक परछाई तक नहीं है किसी भी ज्योग्राफी की बुक में। सो दिस इज हिज वी कैन से दिस इज हिज पेन, दिस इज द लॉन्गिंग ऑफ हिज हार्ट। द ऑथर मस्ती वेंकटेश अयंगर is very much upset because the village Hosahalli has not been mentioned anywhere in the map of India, which is a pain to him। आगे चैप्टर रीड करते हैं। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction। मस्ती वेंकटेश्वर कह रहे हैं कि अयंगर साहब कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू आस्क योर सॉरी, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ क्योंकि मैं कहीं और से शुरू कर रहा था, कहीं और चला गया। एक्चुअली मेरा पर्पस कहीं भी ये बताना नहीं था कि किसने हमारे मैप्स में या किसने हमारी ज्योग्राफी की बुक्स में विलेज होसाहल्ली को मेंशन करा और नहीं करा। मैं तो आपको इस चैप्टर में रंगा की मैरिज के बारे में बताना चाहता हूँ और मैं कहीं और मिसलीड हो गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा। अब आगे जो है ऑथर ने विलेज होसाहल्ली की इम्पोर्टेंस को एक स्वीट कारिका डाबू के साथ कंपेयर करके बताया है। क्या बोलते हैं वो सुनिए। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा, अगर भारतवर्षा मीन्स इंडिया सिटी के लिए, इंडिया कंट्री के लिए मैसूर यानी कर्नाटका इम्पॉर्टेंट है। मीन्स जो इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए मैसूर या कर्नाटका की है, व्हाट स्वीट कारिका डाबू इज़ टू फेस्टिव नेम। तो हम ये कह सकते हैं कि मैसूर का इम्पोर्टेंस इंडिया के मैप में वही है जो इम्पोर्टेंस किसी फेस्टिवल के भोजन में कारिका डाबू स्वीट का होता है। कारिका डाबू वो गुजिया को कहते हैं एक तरह से, जो हमारे यहाँ होली पर बनती है। तो जिस तरह से किसी फेस्टिवल का मील, किसी फेस्टिवल का कोई पूरा खाना बने, भोजन बने, तो वो कारिका डाबू स्वीट के बिना अधूरा है। उसी तरह से अगर इंडिया का जिक्र हो और उसमें मैसूर यानी कर्नाटका का जिक्र ना हो तो वो भी इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो उसने इसके साथ कंपेयर करा है। आगे वो क्या कह रहा है, आगे एक और कंपैरिजन है। देन होसाहल्ली इज़ टू मैसूर, उसने, और उसके बाद वो कह रहा है कि मैसूर यानी कर्नाटका के मैप में होसाहल्ली विलेज का भी वही इम्पोर्टेंस है व्हाट द फिलिंग इज़ टू कारिका डाबू, जो कारिका डाबू स्वीट में फिलिंग की इम्पोर्टेंस होती है। मीन्स कारिका डाबू स्वीट जो है, जो गुजिया होती है, अगर उसमें फिलिंग ना की जाए
उसमें टेस्टी मावा जो होता है उसको स्टफ़ ना किया जाए, जो स्वीट होता है, ठीक है, तो वो स्वीट टेस्टलेस है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। उसी तरह अगर मैसूर के मैप में होसाहल्ली विलेज का डिस्क्रिप्शन ना किया जाए तो मैसूर का जो मैप है या कर्नाटका, जिसको आप न्यू लैंग्वेज में हम कर्नाटका कहते हैं, वो इनकम्प्लीट है। What I have said is absolute true, believe me. Author कह रहे हैं whatever I have said is absolutely true and believe me, I'll not object to your questioning it, and if you put questions to me on it, I definitely not object you, but I'll stick to my opinion. Definitely I'm not going to object you on your questioning, but I'm stick to my opinion. I'm first to my opinion. I stand fast with my opinion. I won't change my opinion. मीन्स वही कह रहा है, मैं अपनी ओपिनियन नहीं बदलूंगा, चाहे आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप करें, चाहे आप मेरे से एग्री हो या ना हो। मैं अपनी ओपिनियन ये मानता हूँ कि स्टेट मैसूर के लिए होसाहल्ली विलेज उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट कारीगर डाबू स्वीट के लिए उसकी फिलिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट द ओनली वन who speaks glowingly of Hosahalli. An author is saying, I am not the only person who speaks so high about this village. I am not the only one, but there is another one. Who is he? Let's read about him. We have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatta. He agrees with me. He has been to quite a few places. Author is saying that I am not the only person who is speaking high about this village Hosahalli. Besides me, there is a doctor in our village, and the name of the doctor is Gunda Bhatta. And this doctor also speaks high, speaks so glorifyingly about this village, and uh, he agrees to the author in this topic. On this topic, no, not England. He has been to quite a places. और वो जो डॉक्टर है वो भी कई जगह घूम के आ चुका है। वो ही इज़ अ लवर ऑफ विजिटिंग्स और ट्रेवल्स, तो वो कई जगह घूमा हुआ है। नॉट इंग्लैंड, हालांकि वो इंग्लैंड तो नहीं गया है। इफ़ एनीबडी आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, ही सेज, अगर कोई भी डॉक्टर गुंडा भट्टा से पूछता है कि क्या वो इंग्लैंड गए हैं, तो डॉक्टर गुंडा भट्टा आंसर देते हैं, नो अनाया। अनाया मीन्स एल्डर ब्रदर, जैसे कि गुजराती में बड़े भाई को कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो मेरे को स्किप कर गए माइंड से। ठीक है, तो उसी तरह से इधर भी इसके होसाहल्ली विलेज में कर्नाटका लैंग्वेज में बड़े भाई को अनाया कहते हैं। ठीक है, मोटा भाई कहते हैं, हाँ मोटा भाई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर कोई भी उस डॉक्टर से पूछता है तो वो डॉक्टर भी यही कहता है, नो अनाया, अरे बड़े भाई मैं वहाँ नहीं गया हूँ, आई हैव लेफ्ट दैट फॉर यू। उसने कहा, दिस प्लेस इंग्लैंड हैज़ बीन लेफ्ट बाय मी फॉर योर विजिटिंग सर। वो ये कह देता है कि इंग्लैंड को मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप जाके घूमिए उसे। क्योंकि आगे वो और क्या कहता है, वो बहुत फनी है, देखिए। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग is not for me. He is saying that I am not a kind of dog who is troubled by the disease of itching. मैं उस डॉग की तरह नहीं हूँ जिसे खुजली की बीमारी हो गई है और जो उस बीमारी की वजह से इधर उधर घूमता ही रहता है। मीन्स ये एक डिसीज़ होती है जो डॉग्स में हो जाती है, और जिसको ये बीमारी हो जाती है, फ्ली पेस्टर डॉग जो होता है, जिसको खुजली की बीमारी हो जाती है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, वो इधर उधर घूमता ही रहता है। तो ऑथर कह रहा है कि मैं एक फ्ली पेस्टर डॉग की तरह नहीं हूँ जो इधर उधर घूमता रहूँ। इट्स नॉट माई जॉब। मैं केवल कुछ अच्छी गिनी चुनी जगह जाता हूँ और विलेज होसाहल्ली उनमें से एक है। मीन्स डॉक्टर विलेज होसाहल्ली को इंग्लैंड से भी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। उसकी नज़र में होसाहल्ली विलेज इंग्लैंड से भी ज़्यादा अच्छा है, उसको घूमना ज़्यादा पसंद करता है वो। I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many.
अगर कोई भी उससे पूछता है डॉक्टर गुंडा भट्टा से, तो वो आंसर देता है मैंने कुछ ही जगहों को घूमा है, मैं ज़्यादा जगह नहीं गया हूँ, बट द फैक्ट इज़ दैट ही हैज़ विजिटेड अ लॉट्स ऑफ प्लेसेस। लेकिन वो लोगों से इस बात को मीन्स इसको बूस्ट नहीं करता, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर नहीं कहता, वो सिंपली कहता है मैं बहुत कम जगह गया हूँ, और उनमें से एक होसा अली भी है, आई डोंट वॉन्ट टू विजिट इंग्लैंड। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज। अब यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा चेंज आ रहा है, यहाँ तक वो डॉक्टर की स्टोरी बता रहा था, अब यहाँ से जो ऑथर है मस्ती वेंकटेश अयंगर, वो विलेज होसाहल्ली की कुछ स्पेशल फीचर्स को हमारे साथ डिस्कस करेंगे। वो कह रहे हैं वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज भी हैं, कम विजिट अस, आप जब भी आए तो वहाँ घूमना ज़रूर, एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम। And author is saying when you happen to come to our village, I'll give you a mango, a raw mango, a unripened mango from the mango tree. Do not eat it. And he is suggesting you not to eat that raw mango, but just take a bite, have a only small bite। वो कह रहा है वो इतना जो कच्चा आम जो उसको वो देगा कैरी, उसको खाना नहीं है, पूरा एक बाइट लेनी केवल, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मनांद्रा। ब्रह्मनांद्रा मीन्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। The author is saying that the soreness of the mango is so fast that it will directly strike to your ब्रह्मनांद्रा। वो इतना ज़्यादा खट्टा है कि वो खट्टापन आपके कहते दिमाग को हिला देगा बुरी तरह से। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it। अब ऑथर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो अपने घर गया था और उसने एक ऐसा ही रॉ मैंगो लिया और उसकी चटनी प्रिपेयर करी खाने के लिए। ऑल ऑफ अस एट इट, उसकी पूरी फैमिली ने वो चटनी खाई। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, एंड आफ्टर टेकिंग द चटनी ऑफ दैट raw mango, the whole family suffered with cough problem and they have to consult the doctor for the remedy. That the doctor told me about the special quality of the fruit, and that time the doctor told him about this speciality of the fruit, that it is so sore that if you eat the chutney of this raw mango, definitely you will get some cough problem. So students, I hope यहाँ तक स्टोरी समझ में आई है, इसको रीड करके रखिएगा, इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।